Good morning, everyone. Today's topic is Arden's theorem, right? Myself, Amit Goel. Arden's theorem is a fundamental result in the theory of regular expression and automata theory, particularly useful for solving regular expression equations involving regular languages. तो Arden's theorem का हमें यूज कब करना है? When we want to produce a regular expression from the given finite automata, then we have to use the Arden's theorem. What is the statement of the Arden's theorem? Let P and Q be regular expression over some alphabet, then the equation R equals to Q plus RP. Okay, R equals to Q plus RP is the equation. Has a unique solution R equals to QP star. So this is the equation, and if we have this equation, we have the unique solution R equals to QP star. What is the condition? Provided that P does not contain the empty string, यानी कि P आपका null नहीं होगा. ठीक. Intuition. The equation can be read as R is a language that either directly comes from Q or is formed by taking some string from R followed by something from P. By unrolling the recursion R equals to Q, QP, QPP and so on, it becomes R equals to QP star. इसका प्रूफ भी आता है कभी कभी. ठीक है, तो प्रूफ में क्या करना है? R equals to Q plus RP is the equation, right? Now put the value of R in right hand side. So what we get? R equals to Q, और यहाँ पे पुट करेंगे Q plus RP and P is there. Now open this. R equals to QP plus RP2. Again put the value of R, so we will get QP QP2 plus RP3 and so on. Finally we will have Q plus QP plus QP2 QPN, or after that, so it is what is it is. We take Q common plus P plus P2 plus P3 and so on, and R over there. So it is Q. It is what is it is P star. So we have the proof R equals to QP star like this, right? So what are the conditions over there? R equals to Q plus RP. The solution is valid only if P does not contain null. जो हमने पहले बात की थी, P आपका null नहीं होगा. What are the applications of the Arden's theorem? Arden's theorem is widely used to convert the finite automata to the regular expression. It is used to solve the regular expression equations, and it also proves the regularity of the languages. ठीक. Now we'll move to the क्वेश्चन. अब क्वेश्चन समझते हैं कि आर्डेन्स थ्योरम को हमें सॉल्व कैसे करना है. फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट? तो फाइनाइट ऑटोमेटा के इसके अंदर हियर वी कैन सी वी हैव 4 स्टेट्स आर देयर, Q0, Q1, Q2 एंड Q3, वेयर Q0 इज द इनिशियल स्टेट एंड इट इज ऑल्सो द फाइनल स्टेट, राइट? तो यहाँ पे वी हैव द डायग्राम और वी हैव द finite automata, right? Now by the given diagram we will make the equation. Now let us form the equation. तो यहाँ पे जितने भी स्टेट है सबके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी यहाँ पर. तो Q0, अब इक्वेशन कैसे बनानी है देख लेते हैं कि जो Q0 पे इनकमिंग एरो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं. लेट अस सपोज एक इनकमिंग एरो आ रहा है आपका Q1 से विद B इनपुट, तो व्हाट विल राइट Q1B. एक इनपुट आपका आ रहा है Q2 से, राइट, एंड द इनपुट इज A, तो विल राइट Q2A. ठीक है, तो Q1B प्लस Q2A और जो भी आपकी इनिशियल स्टेट होगी
there we have to add the null. Okay, so first equation is, this is the first equation, q naught equals to q1b q2a plus null. Now for q1, check, there is one incoming arrow from state q naught. So what will be the equation? q1 equals to q naught a, ठीक है, q1 equals to q naught a. Let us consider it as a equation number 2. On q2 we have two incoming arrows are there. q naught b and q3b. I think this is ये arrow, this is not the arrow, this arrow is this, right? So this is q2 equals to q naught b, q2 equals to q naught b. And what about q3? So one arrow is coming from q1 having a, one is from q2 having b, and two arrow is coming from a, q3 itself, that is ab. So what will be the equation? q3 equals to q1a plus q2b plus q3a and plus q3b, right? So q1a plus q2b plus q3a plus q3b. So consider it as a equation number 3 and equation number 4. तो जितनी भी हमारे पास स्टेट होंगी उन सभी के हिसाब से एक आपको एक एक इक्वेशन आपको बनानी है. नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. अब आंसर कैसा आना है इसके अंदर, जो भी आपकी फाइनल स्टेट है वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर दैट. यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइनल क्यू नॉट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, राइट? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q1, दिस वन, एंड q2 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 रेस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 1. तो यहां पे ये पुट करेंगे, आपका q1 की जगह पुट करेंगे q नॉट a. तो q1 q नॉट a, दैट इज q1, और b यहां पे है. फिर q2 की वैल्यू पुट करेंगे q नॉट b, a ऑलरेडी इज प्रेजेंट एंड नल इज देयर. नाउ द इक्वेशन बिकम्स q नॉट ab प्लस q नॉट ba प्लस नल. नाउ वी विल रीअरेंज दिस. तो ये नल हमने पहले ले लिया प्लस q नॉट इसमें से कॉमन लिया, तो क्या बचा, ab और ba. तो ab और b आपका यहां बचा. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद द आर्डर्स थ्योरम व्हिच इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन r इक्वल्स टू q प्लस rp. So when we compare this with the standard equation, this one, right? So r equals to q naught, this is r, this is q, so q equals to null, this is r again, and this is p. So p is ab plus ba, and what is the unique solution is qp star. तो qp star हमारा क्या हो गया यहाँ पर, q तो कितना null, तो null डॉट p star ab प्लस ba का होल स्टार, ठीक है, विच इज इक्वल टू ab प्लस ba का होल स्टार, बिकॉज नल इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो ये हट जाएगा आपका. सो फाइनल आंसर इज r q1 इक्वल टू ab प्लस ba का स्टार. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा, ab प्लस ba का होल स्टार, राइट? तो इस तरह, अब इससे किस किस तरह की स्ट्रिंग हमारे पास निकल सकती है. एक तो नल निकल सकती है, नल यहाँ पे आप देखो. तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, ab प्लस ba का होल स्टार. तो इससे हम कौन कौन सी ले सकते हैं, एक तो नल ले सकते हैं. तो इनिशियल स्टेट द फाइनल स्टेट, वी कैन टेक नल ओवर देयर, वी कैन टेक ab. तो a देखिए a और b, तो वी कैन टेक ab, वी कैन ऑल्सो टेक ba. सो b और a, राइट, ba ले सकते हैं यहाँ पर, और ab का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले सकते हैं. अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे q3 का तो यूज हुआ ही नहीं, इक्वेशन तो हमने बनाई थी q3 की भी, लेकिन इसका यूज तो कोई कुछ हुआ ही नहीं. इसका यूज इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यहां से कोई भी स्टेट आपकी आगे नहीं जा रही है. सो इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ डेड स्टेट. तो आपने ऑटोमेटा डीएफए में पढ़ा होगा कि डेड स्टेट के अंदर कोई भी आपका आउटगोइंग एरो नहीं होता, सब इनकमिंग एरो होते हैं, और बाय विच वी कैन नॉट रीच टू द अनदर स्टेट. सो इट इज कंसिडर्ड टू एज अ डेड स्टेट.
तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है इसका, इसको हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपका यूटी में आया हुआ है 2022 और 23 के अंदर, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ अगेन हियर in the given diagram we have again 4 states are there, where q naught is the initial state, this is the initial state, and q3 is the final state, q3 is the final state, right। तो नल किस में ऐड करेंगे बच्चों, इस नल ऐड करेंगे हम इनिशियल स्टेट के साथ q नोट के साथ, और एक्सप्रेशन किसका निकालेंगे इस बार हम q3 का। Now make the, let us form the equation. So Q नोट पे इनकमिंग एरो कहां से आ रहे हैं, 2 से आ रहे हैं, Q नोट ए और Q नोट बी, राइट। तो Q नोट ए एंड Q नोट बी, और बिकॉज ये इनिशियल स्टेट है तो नल ऐड करेंगे, कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 1। Q1 पर कहां से आ रहा है एरो, Q नोट से आ रहा है विद इनपुट ए, तो Q1 इक्वल टू Q नोट ए, तो Q1 इक्वल टू Q नोट ए becomes the equation number 2. Now for Q2, this arrow is not here, this is here. So for Q2, it comes from the Q naught having input B, so it becomes Q naught B. So Q2 equals to Q naught B, equation number 3. And for Q3, we have three inputs are coming, एक तो Q2 से आ रहा है Q नोट Q2A, एक Q1 से आ रहा है Q1B, और एक Q3 से आ रहा है Q3C। So Q1B plus Q2A plus Q3C, this is equation number 4, right। Now we have to find the solution for the Q3. So यहाँ पे Q1B है, Q2B है, Q3B है, that we have to remove over there, right। So first put the value of Q1, Q2. Now compare equation number 1 with Arden's theorem, R equals to Q plus RP। यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, R, ये R हो गया, इक्वल्स टू ये Q प्लस R, और ये है, इसको पहले रीअरेंज किए करेंगे हम, ठीक है, रीअरेंज करेंगे इसको, तो ये इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, we are comparing this R equals to Q plus RP, ठीक है। तो R आपका Q नोट हो गया, Q आपका नल हो गया, और A प्लस बी P हो गया। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, QP स्टार, तो Q नोट इक्वल्स टू P कितना है, A प्लस बी का होल स्टार, तो Q नोट की वैल्यू आ गई A प्लस बी का होल स्टार, ठीक। नाउ Q1 इक्वल्स टू A प्लस बी का होल स्टार A, एंड Q2 इक्वल्स टू A प्लस बी का होल स्टार B। यानी क्या किया हमने, Q नोट की वैल्यू इसमें रखी, पहले तो यहाँ पर रखी Q नोट की वैल्यू, तो ये बन गया आपका A प्लस बी का होल स्टार, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q नोट और A, राइट। और फिर इसमें रखी Q नोट की वैल्यू यहाँ पर रखी A प्लस बी का होल स्टार और B, तो वी हैव द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 ऑल्सो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इन इक्वेशन नंबर Q3। So put the value of Q1 and Q2 in equation number 4, we get, ये वैल्यू किसकी थी, Q1 की वैल्यू कितनी थी, A प्लस बी का होल स्टार A, ठीक है। तो A प्लस बी का होल स्टार A और B आपका यहां पर आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q2, A प्लस बी का होल स्टार B और A, और Q3C पहले से ही था यहाँ पर, यू कैन सी Q3C पहले ही से था आपका यहाँ पर, ठीक है। नाउ रीअरेंज द इक्वेशन, दिस इक्वेशन वी हैव टू रीअरेंज। अब यहां पे हमें क्या मिला, A प्लस बी का होल स्टार AB प्लस A प्लस बी का होल स्टार BA, ठीक है, और प्लस Q3C। नाउ कंपेयर विद द आर्डन्स थ्योरम, सो दिस बिकम्स R, ये पूरा क्या हो गया आपका Q प्लस ये R और ये P हो गया आपका, ठीक।
तो हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। तो क्यू पूरा ये हो गया और पी कितना हो गया आपका सी, तो सी स्टार लगा दिया हमने यहाँ पे। ये हमारी आई रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन ये हमारा आ गया। अब ए प्लस बी का होल स्टार ए बी और ए प्लस बी का होल स्टार बी ए और एट लास्ट सी स्टार। तो आप यहां पे देखें हमारा एक्सप्रेशन आया है ए प्लस बी का होल स्टार ए बी प्लस ए प्लस बी का होल स्टार बी ए, ठीक, और यहां पे सी स्टार आया है। अब इस पे स्ट्रिंग कैसी कैसी हमारे से आ सकती हैं ये चेक कर लेते हैं। तो इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्टार ए बी मिला मुझे, और उसके बाद एनी नंबर ऑफ सी, यहां पर कितनी भी सी ले सकते हैं हम। और वी कैन हैव ए प्लस बी का होल स्टार बी ए, तो ये आ गया बी ए और एनी नंबर ऑफ सी वी कैन टेक। व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रिंग ऑफ दिस, तो या तो मिनिमम स्ट्रिंग ए बी होगी और बी ए होगी मिनिमम स्ट्रिंग। तो यहां पे इसको हमने नल ले लिया ए और बी या बी और ए, ठीक है, और एनी नंबर ऑफ सी वी कैन टेक। तो ए बी सी भी स्ट्रिंग हो सकती है, ए बी सी 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 भी हो सकती है, और बी ए सी हो सकता है, बी ए सी सी भी हो सकता है, एंड सो ऑन। सो इस तरह की स्ट्रिंग्स ये आपका यहां पर लेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसके अंदर यहां पे देखेंगे हम, वी हैव द थ्री इक्वेशंस आर देयर, थ्री स्टेट्स आर देयर, सो वी हैव टू फॉर्म थ्री इक्वेशंस। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, पहले यहां पे बना लेते हैं हम। Q1 इक्वल्स टू, एक तो ये आ रहा है आपका ए Q1A प्लस Q3A, Q3A प्लस नल, राइट। Q2 के लिए क्या बनेगी, Q2 इक्वल्स टू, एक तो Q1B प्लस Q2B प्लस Q3B, और Q3 की बनेगी इक्वेशन हमारी Q2A, ठीक है। और Q1 के लिए एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो Q1 इक्वल्स टू Q1A प्लस Q3A प्लस नल, Q1A प्लस Q3A प्लस नल, Q2 की Q1B Q2B प्लस Q3B, तो Q1B Q2B प्लस Q3B, और Q3 की Q2A, तो Q2A हमारी इक्वेशन बन गई यहां पर। नाउ वी हैव टू सॉल्व एंड वी हैव टू फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द Q1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q3 इन Q2, तो Q3 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहां पुट करेंगे, Q2 में पुट करेंगे यहां पर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, Q2 इक्वल्स टू Q1B Q2B प्लस Q2A और B Q2AB, राइट। इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, Q2 कॉमन आ रहा है यहां पर, तो क्या बचेगा, B प्लस AB बचेगा, ठीक। नाउ वील अप्लाई द आर्डर्स थ्योरम, R इक्वल्स टू Q प्लस RP। तो यहाँ पे R कितना हो गया, ये आपका R हो गया, ये पूरा आपका हो गया Q, ये R और ये P, और सॉल्यूशन क्या, R इक्वल्स टू QP स्टार। तो Q कितना हो गया, Q1B और P कितना हो गया, B प्लस ए बी का होल स्टार। ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, Q2 की वैल्यू आई है, ठीक है। तो Q2 हमारा ये आ गया। अब मेरे पास Q2 आ गया है, तो Q2 की वैल्यू पुट करेंगे Q3 के अंदर, तो मिल जाएगी Q3 की वैल्यू, और ये वैल्यू Q3 की आ जाएगी Q1 के अंदर, और उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, ये हमारी इक्वेशन थी, यहां हमने वैल्यू पुट की किसकी, Q3 की, तो Q2A, तो Q2A प्लस नल, ठीक। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q2 इन Q1, तो Q2 की वैल्यू पुट करी हमने यहां पर Q1 के अंदर, इसको रीअरेंज किया यहां पर, ठीक है, इसको कंपेयर किया R इक्वल्स टू Q प्लस RP से, R इक्वल्स टू Q प्लस RP से इसको, तो यहाँ पे R कितना हो गया, ये R हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये पूरा P हो गया, एंड हैविंग सॉल्यूशन QP स्टार, तो इस पूरे का स्टार, राइट। So this is the required regular expression for the given finite automata. तो ये कैसी कैसी इक्वेशन यहाँ पे लेगा ये, एक तो नल ले सकता है क्या, तो देखते हैं, हाँ नल ले सकता है क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है।
खाली ए ले सकता है, ये बिल्कुल ए ले सकता है, यहां से खाली ए स्टार कितनी बार भी ले सकता है बी, बी प्लस ए बी, तो बी ए, ये आपका बी ए ए, तो बी ए ए लेगा क्या, बी ए ए, हाँ ये भी ले सकता है। तो ठीक है, तो ये इट कैन टेक नल, इट कैन टेक नल, तो ये नल ले सकता है यहाँ पर, ये वाला इस वाले में इट कैन टेक नल, इट कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए ए राइट, तो ए स्टार ले सकता है ये, और बी ए ए, बी ए ए, ठीक है, बी बी स्टार ए ए, तो बी बी स्टार ए भी ले सकता है यहाँ पर, तो बी यहां से बी स्टार ए, तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की 3 क्वेश्चन से कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे विद द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।